वो पंचेस बहुत अच्छे हैं तो उसने आधा काम हो जाता है। पर आई मीन इट्स आल्सो अबाउट डिलीवरिंग इट, मतलब वो टैलेंट भी जरूरी है तो I don't want to say much, but the kind of advanced bookings which is happening right now, I mean, we're really hoping that things go on a positive note. एक दिन मैं चौल में रहता था, तो मुझे चौल में एंटर हुआ तो रात को 2-3 बजे वो बिल्ली बेचारी डर के हमारे उसने जम मार के मेरे पे चली गई। तो कुछ साइकोलॉजिकल हो गया, क्या हो गया पता नहीं। उसके बाद घर में जो है वो अक्सर मैं अपना गला दबाता था, गला दबाता था और मुझे ये लगता था कि बिल्ली दबा रही है, तो मैं उसको छुड़ाता था लेकिन एक्चुअली मैं दबाता था। हमारे वहाँ पे एक सामने घर के तो एक पेड़ हुआ करता था बरगद का, तो उसके नीचे नहीं जाओ रात को, कुछ ऐसा। Alright, so today I have with me the team of Bhool Bhulaiyaa 2. Welcoming Kartik Aaryan Kiara Advani and the director, the captain of the ship, Anees Bazmee. Welcome everybody. How are you doing? We are doing good. Welcome. बार-बार लगता है सर की पिक्चर का नाम वो नाम ही ऐसा है ना कि वो कहीं भी जाओ ऐसा लगता है कि फिल्म का टाइटल आ गया। But thank you so much for having us. How has Delhi been treating you so far? आप लोग कल आए थे, कल I'm sure like खाना एकदम गरम ट्रीट कर रही है। एकदम वेदर वाइज भी एंड रिस्पॉन्स वाइज। yeah, warm. Then that's warm. Yes, very and warm. outside it's Very hot. Yeah, I know. But ठीक है, okay. You know, I have to say, I was speaking to some of your team members as well that when Bhool Bhulaiyaa 2 का announcement, when we got to know, the title track is coming, and everybody was, also very skeptical, very honestly. कि मतलब कैसा होगा, and we've seen remakes and we've seen how sometimes they don't work out that well, but the fact that you've retained the essence and it's doing so well, at the same time you're looking fantastic. Like those moves are killer. So I think it's just amazing, and I've been seeing the response online. Everybody seems to be liking it. Everybody seems to be really rooting for the trailer as well, for the film at large. So I think it's really off to a great start. जिस तरीके का रिस्पॉन्स ट्रेलर से आया, सॉन्ग से आया, इट्स बिन ह्यूमंगस, इट्स बिन ह्यूज, and it's gone on a very positive note for everyone involved in the film, and because it's always a pressure to do a sequel to a hit, to a cult film, and especially Bhool Bhulaiyaa being that film, you don't want to disappoint the fans, and you don't want to disappoint anyone for that matter, with a sequel. So I think it's been really positive for all of us, and the kind of I don't want to say much, but the kind of advanced bookings which is happening right now, I mean, we're really hoping that things go on a positive note. Kiara, what do you want to say about that? We did have, hopes that people would love it, but I think it's surpassed everything that we thought of, even with the positivity, with the kind of love that, like usually they compare when it's a franchise, you're comparing it with the earlier one and all of that. And we hoped for one, not two, because the story is fresh. It's a new film, of course, elements of the original in it, but it's still a new and fresh story with all characters completely new and fresh in this. So I think the audience has been showering a lot of love. It's very, very exciting. हम सब देखना चाह रहे हैं ये फिल्म जो है ऑडियंस के साथ, कि जिस तरह हमने शूट करने के तम सोचा था कि इसके अच्छा ये रिएक्शन आएगा, ये आएगा और लोगों को इतनी पसंद आनी चाहिए, तो यही बात हम लोग ऑडियंस के साथ बैठ के देखना चाहते हैं कि How nice. But this is one of those films na, which you actually want to sit in a theater and enjoy. You can't, I mean, घर पे बैठ के वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता. You don't get that feel, right? You have to sit in a theater, get those punches, also get scared in that entire environment. बिल्कुल सही बात है। कॉमेडी फिल्में जो है वो खासकर कॉमेडी एंड इस तरह ये एक लोगों के साथ बैठते हैं तो इसका मज़ा ही और होता है। मैंने काफ़ी फिल्में ऐसी बनाई हैं जिसके जब हम लोगों ने ट्रायल्स देखे तो सिर्फ अपने 2-3 टेक्नीशियंस और हम प्रोड्यूसर्स होते थे और हम लोगों को कई मरतबा लगता था कि यार ये क्या है, क्योंकि इतनी बार काम कर चुके हैं, शूट कर चुके हैं, देख चुके हैं, एडिट कर चुके हैं, बिल्कुल हंसी नहीं आती थी। और कई मरतबा ये भी हुआ है कि
बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स, व्हेन स्पेशली आई वाज अ राइटर, तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स जो है इसलिए कट कर दिए गए कि भाई इसमें कॉमेडी नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि भाई हम लोग 4 लोग देखेंगे तो कभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और लोगों को बुलाइए, और जो सीन्स कट किए हैं वो हम लोगों ने वापस जुड़वाए, और उसके बाद जब देखे तो देखिए अजीब सी बात यह है कि जो सारे सीन्स कट किए गए तो उसी पर सबसे ज़्यादा लाफ्टर्स थे। Imagine. That is amazing. या ओके सो नाउ क्योंकि हॉरर और कॉमेडी दो ऐसे जॉनर है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, यू नो, आई मीन स्पेशली फॉर द टू ऑफ यू, लास्ट फ्यू फिल्म्स हैव डन रियली वेल, लाइक यू नो धमाका recently and you know being SHOWSHA, while you know you have been getting so much praise for these films and you know you're acting and all of that, but I feel something like this is way more challenging because it's very hard to you know make people laugh, and you all are doing that and you're scaring them. Both things are you know really tough. So tell me a little about that. Just the fact that you're venturing into something which is so challenging. How is that for you, for the both of you? पहले आप I think I really enjoyed being a part of Bhool Bhulaiyaa 2, and जो कैरेक्टर मेरा था रूहान का, रू बाबा का, वो अपने आप में बहुत नॉटी है, बदमाश है, मस्तीखोर है. सो आई फेल्ट एट ईज विद द कैरेक्टर, एंड तो उसके सीन्स भी जो थे वो काफ़ी ऐसे मस्ती वाले थे, जिनमें फ़नी कुछ ना कुछ वो विटी वन लाइनर्स बोल रहा था, एंड आई वॉज एंजॉइंग दैट. तो मैंने खूब इंजॉय किया, खूब उसको रिलिश के वो मोमेंट्स एंड उनको प्ले करना. प्लस देन जब ड्रामेटिक सीन्स थे या फिर हॉरर वाले सीन्स थे, तो उनमें भी काफ़ी इतने जो एलिमेंट्स थे वो मेरे लिए पहली बार नया था कि there was VFX happening, there were things which were I was not used to maybe. तो वो सारी चीज़ें देखना और उनके बीच में एक्टिंग करना, ग्रीन स्क्रीन होना या चीज़ें, आई थिंक वो थोड़ा नया था. बट आई रियली एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस. तो वो मेरे लिए नया था भूल भुलैया 2 में, एंड सो बट आई एंजॉयड the whole process. So you are someone who can pull it off, I believe. You know, जितना हमने ट्रेलर में देखा, the punches that you have, I think they work pretty well. So I think, yeah. वो punches बहुत अच्छे हैं, तो उसमें आधा काम हो जाता है. But I mean, it's also about delivering it. मतलब वो टैलेंट भी जरूरी है. तो now we're talking. Exactly what I'm saying. कितना humble. So humble. हाँ बहुत, लेकिन अभी लास्ट में सच्चाई बोलनी पड़ी. मजबूरी में सच्चाई बोलनी पड़ी. But it is challenging to the extent that I think when you're playing, like, the simplest things to do or say as an actor, and it sometimes becomes the toughest, because you know you don't have to, you don't want to put too much effort in. You just have to like throw your lines and have fun with it. But to be honest, like he said, I felt it was more enjoyable. This was that one film that we would look forward to coming on set and shooting, because you know, I think just the story, the vibe, the scenes, everything was so entertaining that it was more exciting to perform. See, what we're going to do today, how we're going to, you know, play out these scenes. Sir would always make it very exciting. He would act it out for us. He would, you know, prep us up in a fun way. A lot of spontaneity, improvisations were happening on set. So there was a lot to learn. There was a lot of fun. There was a lot of enjoyment. So I think for me, this was more like that set that I just came and I had a blast on. I do want to know from Anees sir, the fact that you're doing Bhool Bhulaiyaa 2, how difficult was it for you to create the same universe but at the same time make it different, so that you know the audience feels कि Bhool Bhulaiyaa 2 है पर Bhool Bhulaiyaa नहीं है. So I'm sure it's like there's like a thin line between it. So how do you tap into that? It's actually a very difficult work, and ये एक चैलेंज की तरह ही है, क्योंकि आप जब भी पार्ट मतलब 2 बनाते हैं तो लोगों के एक उम्मीदें हो जाती है, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और एक नई फिल्म बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना आप, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मतलब कोशिश ये की है कि सिर्फ उसकी हल्की हल्की यादें रहें, क्योंकि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म अगर हमने बनाई तो वो मुझे लगता है कि लोग नहीं देखना चाहते हैं. तो एकदम बिल्कुल कैसे तलवार की धार पर आप खड़े हैं कि अगर एकदम वैसी बनी तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसी नहीं बनी तो प्रॉब्लम है. तो वो एक आपको बैलेंस करना पड़ता है एज ए राइटर डायरेक्टर कि आपने एक ऐसी फिल्म बनानी है जो एकदम नई भी हो लेकिन
इतनी नई नहीं हो कि उसमें भूल भुलैया कहीं भूल जाए, खो जाए। Yeah. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मुझे लगता है। और इसको जो है मुझे लगता है कि सारे लोगों ने जो मिलके जो एक पूरी यूनिट ने हेल्प की है, और जिस तरह शूट किया है, जिस तरह इन दोनों ने भी काम किया है मस्ती करते हुए, ये फिल्म जो है मुझे लगता है कि फिल्म बनाने के वक्त एक अच्छी यादें होनी चाहिए। तो ये काफ़ी वक्त तक ये फिल्म जो है मेरी यादों में रहेगी कि एक अच्छा माहौल था, बहुत खुशगवार माहौल था, बहुत हंसी की है, मजाक किए, मस्तियाँ की है, और बिना किसी उतने टेंशन के हमने ये फिल्म बनाई है। मेहनतें बहुत की है, इसलिए कि बीच में पैंडेमिक भी था, सब था, लेकिन यस ये फिल्म बनाना आसान नहीं था और ये मुश्किल काम किया है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हमने सबने मिलके किया है, ऐसा भी हमें फील होता है। डेफिनेटली। ओके, क्योंकि ये हॉरर जॉनर में है, इफ यू वर गिवन $1 million टू स्पेंड अ नाइट इन अ हॉरर हाउस, लाइक अ हॉन्टेड हाउस रादर, वुड यू एवर डू दैट? $1 million? बिल्कुल भी नहीं। मुझे डिपेंड करता है ज़रूरत कितनी है। हाँ, वो बात भी है एक्चुअली। अगर मुझे बहुत पैसों की जरूरत हुई तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वैसे अगर मेरे पास पैसे हैं, फिल्में में कर रहा हूँ मैं, तो सिचुएशन You'd skip then. So okay, but ऐसा होता है ना, जैसे बचपन में स्पेशली होता है कि like you have like really scary nightmares and you're like यार something like really haunt you. So do you have anything like that which you probably had then, or still like a scary nightmare that you can remember? मतलब मुझे याद है कि बचपन में ऐसा होता था कि हमारे वहाँ पे एक सामने घर के तो एक पेड़ हुआ करता था बरगद का, तो उसके नीचे नहीं जाओ रात को, कुछ ऐसा बोलते थे कि वो वरना वो गलत होता है। हाँ, तो एक तरीके से सुपरस्टिशियस वो चीज़ थी। ये भी अभी मैं ना इतने इंटरव्यूज कर रहा हूँ ना, तो रोज एक कहानी जब कोई पूछता तो याद आता है कुछ ना कुछ ऐसे आपस में ऐसे याद आता है, अच्छा ये भी था कभी बचपन में कहीं पे, ये भी था। So हाँ, one of those things. I remember one thing, Kartik, it is very interesting. When I was assistant, तो I was becoming, मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं राइटर बनूँ, तो मैं एक हॉरर फिल्म लिख रहा था अबाउट कैट के ऊपर। तो काफ़ी मैं लिख रहा था, और एक दिन मैं चौल में रहता था, तो मुझे चौल में एंटर हुआ, तो रात को 2-3 बजे वो बिल्ली बेचारी डर के हमारे उसने जम मार के मेरे पे चली गई। तो कुछ साइकोलॉजिकल हो गया, क्या हो गया पता नहीं। उसके बाद घर में जो है वो अक्सर मैं अपना गला दबाता था, गला दबाता था, और मुझे ये लगता था कि बिल्ली दबा रही है, तो मैं उसको छुड़ाता था, लेकिन एक्चुअली मैं दबाता था। तो मेरी मम्मी डैडी सब परेशान होते थे। और उसके बाद मुझे आउटडोर जाना था, और वहाँ आउटडोर जाना ज़रूरी था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तेरे को नहीं जाने दूंगी, तो अकेला। बहुत मैंने कसमें उसमें खाई कि भाई मैं अकेला नहीं सोऊंगा, और मैं चला गया वहाँ राजस्थान में शूटिंग थी। तो असिस्टेंट जो मेरे साथ में सोने वाला था, उसको मैंने कहा कि देख भाई, रात को मैं अपना गला दबा बोले कि अपना ही दबाते हो या दूसरे का? मैंने बोला नहीं, मैं अपना ही दबाता हूँ। तो मैंने बोला देख भाई, ऐसा होता नहीं, कभी महीने में 15 दिन होता है, अगर ऐसा हो जाए तो यार प्लीज मेरा हाथ तू निकाल देना। एंड एक दिन हुआ, कुछ अजीब सी आवाज़ें आई होंगी, मैंने गला दबाया, वो भाग गया। आई एम शॉक्ड। हाँ, एंड बाहर जाके चिल्लाया विल्लाया, तो लोग आए, एंड बहुत अच्छा हो गया कि सही वक्त पे आए, एकदम मैं अपना दबा चुका था। तो ये मेरे साथ तो हुआ है। ये मैंने पहली बार सुना है कि याद आता रहता है कुछ कुछ। I'm still in shock. Yeah. The stories are बहुत। Oh my god. Okay, but if there is one thing that you're like that really scares you, doesn't have to be like a paranormal thing, but just something that really scares you, what is it? I have a very weird phobia of birds. Of pigeons. अगर हम लोगों की शूटिंग पे भी थे, तो हाँ सब याद है। Imagine I have a doing song major. like Masak. I can never do it. So like that 100 million thing you asked, if they even paid me that, I would not do it. Oh my god. मतलब मैं haunted house जाऊंगी, birds के पास नहीं जाऊंगी, पता नहीं क्यों। Haunted house में तो होती कुछ तो हुआ होगा मेरे बचपन में, which I'll have to go do some therapy to find out what it was. Yeah. But Wow. yeah, weird. Kartik, what are you scared of? Snakes. Yeah. I mean, sometimes I feel कि कहीं कोई फार्म हाउस में या कहीं पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत फॉरेस्ट हो, होटल भी जहाँ पे कुछ होते हैं ऐसे विलास वगैरह, तो वहाँ पे मुझे डर लगता है कई बार कि यहाँ कुछ वॉशरूम के आसपास कहीं बिस्तर पे हमेशा लगता है ये इसके अंदर होगा। हाँ, कि कुछ ना हो, और बाथरूम में गया तो जो लैच है उसके ऊपर दिखाई देता है, कहीं से ना आ जाए, तो वैसी चीजें होती है।
Anees sir, what scares सेम you? सेम सेम स्नेक के बारे में मुझे, और मेरे तो एक दो दोस्तों को पता भी है, तो वो कुछ कहानियां सुना रहे थे, तो बोल रहे थे अगर स्नेक आया, तो मैंने बोला भाई एक काम कर, ऐसे मत, ऐसे रखा कर, नहीं से डर लगता है मुझे. I think that's all the time we had, but this was so nice. Thank you, everybody. Thank you. And I'm really looking forward to watching Bhool Bhulaiyaa 2 genuinely, and I hope that it does really, really, really Thank you. well. Thank you so much. Thank you. Do watch first day, first show. Done. Done. Then I'll tweet also. Then I'll tweet also. Thank you. Thank you, guys.